Jaya Sharma, please introduce yourself. Good afternoon, sir. I come from Hisar district of Haryana. I'm 26 years old and I have an educational background in mathematics. I've done my graduation in mathematics, which is honors from Indraprasth College of Women, Delhi University. I did my post graduation, which is Masters in Mathematics from IIT Delhi. After that, I got an opportunity to pursue research in the measure theory field for a project of ISRO. I've also worked with an emerging startup called Libel Vision in the water conservation field. In my college days, I've explored myself in various activities like NSS, quizzing, and Mathematics Society, which has helped to shape my socializing and leadership abilities. My other interests include reading novels. Reading novels, that's a good hobby to keep. Jaya Sharma, you are from Hisar. Hisar, the city. Yes, sir. So Sir, Hisar is also an administrative division, and I belong to the Hisar city, the proper city. okay. How many divisions Haryana have? Administrative divisions? Six divisions. Six overall, including the Hisar. Yes, sir. Okay. How many districts are there? So there are 22 districts, including 22 Hisar. districts. What is the literacy rate of Haryana? So as per the 2011 census, it is around 75.11%. 75. And what is your sex ratio as per the same census? So it is 879. 79. Okay. जया हरियाणा एक लैंडलॉक्ड स्टेट मानी जाती है। कितने स्टेट्स हरियाणा से बॉर्डर शेयर करते हैं? Sir, there are five states which share border with Haryana. Also, there are two union territories which share border. Okay. Could you please name them? Yes, sir. Sir, the states are Rajasthan, Punjab, Uttar Pradesh, Uttarakhand, and Uttar Pradesh, uh, Himachal. Sir, Himachal Himachal. Pradesh. Okay. And the UTs are? Sir, Delhi and Chandigarh. Okay. You mentioned Uttarakhand. Are you sure Uttarakhand share the boundary with the Haryana? Yes, It share. yes. In which district? Sir, with Yamunanagar district. With Yamunanagar district. Great, great, great. Okay. जय शर्मा ये बताएं कि हरियाणा अभी भी एक एग्रीकल्चर स्टेट मानी जाती है Yes, जिसमें ज़्यादातर पॉपुलेशन वो रूरल एरिया में रहती है। yes. Sir. तो प्लीज़ बताएं कि इस वक्त रूरल जो हरियाणा है इसके सामने तीन प्राइम चैलेंजेस कौन कौन से हैं? Okay. Sir, should I tell it from the agriculture perspective itself or the overall challenge? ओवरऑल थ्री प्राइम चैलेंजेस जो आप देखते हैं कि रूरल हरियाणा के सामने ये बड़े चैलेंजेस हैं, चाहे वो सोशल हो, पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिकल, बी इट एनी फ्रॉम एनी फील्ड। Okay. Sir, number one is a social challenge of a low female sex ratio, which is the one of the lowest in the country. And also the child sex ratio is also lowest in the rural Haryana, ठीक है, which is 832. The second, there is an emerging drug menace abuse in Haryana. वेरी गुड। And third, sir, I would quote that the water level table is going down in Haryana due to overexploitation, which is hampering agriculture as well at some places. Okay, so water table is the root cause for agriculture distress in Haryana. Sir, it is not the root cause, but it is one of a prime cause. Good enough, good enough. ओके, सेक्स रेशियो के बारे में काफ़ी हरियाणा के बारे में बातें होती हैं, अच्छी भी कि प्रोग्रेसिव भी हो रहा है अभी माहौल, और कुछ ख़राब भी। तो मुझे कोई पॉसिबल सॉल्यूशंस बताएं कि किस तरीके से सेक्स रेशियो को इम्प्रूव किया जा सकता है, क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए सेक्स रेशियो को इम्प्रूव करने के लिए? सर, सबसे पहले तो मैं इसमें कहना चाहूंगी कि एक पेट्रियार्कल एटीट्यूड है सोसाइटी में, उसको ब्रेक करने की बहुत जरूरत है, जिसके लिए रोल मॉडल्स हम पब्लिसाइज कर सकते हैं पब्लिक में, जैसे गीता फोगाट, बबीता फोगाट,
जो हमारी हरियाणा की बेटियों ने बहुत नाम रोशन किया है, ना कि सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। दूसरा मैं मानूंगी सर कि जो शिक्षा है, लड़कियों की शिक्षा पे बहुत ध्यान देना चाहिए, जिसकी वजह से उनको और आगे अपॉर्चुनिटीज मिल पाए, ताकि वो और अच्छा परफॉर्म करे और उसकी वजह से वो भी एक रोल मॉडल बन सकती है। शिक्षा स्तर को इम्प्रूव करने की जरूरत है। ठीक है। सर तीसरा उसके लिए सरकार एक बहुत बड़ा अहम रोल निभाती है, जैसे कि सरकार की कुछ स्कीम्स हैं, लाडली, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सखी, तो इनका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन करने की जरूरत है ग्राउंड लेवल पे, ताकि अच्छे रिजल्ट्स मिल सके। ओके ओके ओके। तो क्या ये प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही हैं अभी तक? सर ये स्कीम्स का डिजाइन स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है और इनका इम्प्लीमेंटेशन भी काफी हद तक हुआ है। जैसे 2015 के बाद से जो प्रॉपर सेंसस तो नहीं आया है, बट कुछ डेटा रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग द जो सेक्स रेशियो है वो 900 पार कर चुकी है। ओके। बट फिर भी कुछ कमियां हैं, जैसे कि रूरल एरियाज में इतना इन स्कीम्स का अभी तक बेनिफिट नहीं पहुंच पाता है, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि जो पुरानी धारणा लोगों के मन में पेट्रियार्की की बनी हुई है, उसको पूरी तरह तोड़ने में ये स्कीम कामयाब नहीं हो पाई है। तो थोड़ा सा जो इंफॉर्मेशन, एजुकेशन और कम्युनिकेशन, आईईसी जिसे बोलते हैं, उस पर अगर और फोकस किया जाए तो इसकी और बेहतर रिजल्ट दे सकती है। फेयर इनफ, फेयर इनफ। अच्छा जय शर्मा, आपने मेंशन किया रीडिंग नॉवेल्स एज अ हॉबी। यस। ओके। सो किस तरह के नॉवेल्स आप पढ़ती हैं? फिक्शन, नॉन फिक्शन? I mostly am reading into fiction novels, but recently I've started shifting to the non-fiction novels as well. Which is the novel most recently you have read or you are reading? Sir, Man's Search for Meaning, I've recently read. could It you, is a novel by Viktor Frankl. विक्टर फ्रैंकन। दोबारा बताएंगे नॉवल का नाम? इट वाज Man's Search for Meaning. मैन सर्च फॉर मीनिंग। व्हाट इज दिस नॉवल इज ऑल अबाउट? So this novel is about a person who got caught in the Nazi concentration camp when under the regime of Hitler, and he narrates how he undergoes a lot of suffering in those camps. But still, he writes that amongst those suffering also, how he is able to change his attitude positively and find meaning in his life in those sufferings also. So it gives a beautiful message that one needs to change our attitude to have a positive meaning towards life. That's good. That's great. Which is your favorite writer as a Sir, novelist? my favorite writer is Khalid Hosseini. Khalid Hussein Zedi. Sir, Khalid Hosseini. Khalid Sir, Hussein. he hails from Afghanistan. Yes. Afghanistani writer. Okay, okay. Any favorite work of Khalid Sahab? Sir, yes, sir. Sir, A Thousand Splendid Suns. Oh, this is one of my favorite books as well. What is unique about it? Why you consider it favorite? Sir, this book, firstly, I like the style of writing the narration. So it revolves around the story of two girls in Afghanistan. So parallelly, two stories are shown in the novel very beautifully, and it throws deep insights into the sufferings which the women have to suffer, not only in Afghanistan but otherwise also. So I really like the narration in that book. Very good. You have mentioned two of the writers. One is, I believe, or what I presume is a European or English one, and one is Afghanistani. Don't you like any Indian novelist? Or you reject Indian novelists that they are not at par with the European or other writers? Sir, no, it's not my opinion. It's just that one book is like the recent I've read, as you asked, and second is like Okay. one of my favorite writers. But I have read Indian authors as well, and I like their writing. Okay, so you feel that Indian authors in English writing, as far we are discussing that English books and that is more in the vogue. So Yes. how you see English, how you see Indian writers in English, they are at par or not at par with them, the European or other culture? Sir, I believe that Indian authors
write equally good. And initially, the writing, the classic novels began in the European art. So maybe the intensity or the popularity of the Western or European novels may be more, but we have emerging Indian authors as well who are doing good work. Any Indian name? Sir Robin Sharma, Robin Sharma. Any famous book of Mr. Robin Sharma? Sir, the 5 a.m. Club is a famous book. 5 AM क्लब, ओके। और And ये ठीक है, बिल्कुल। तो ये आप इंग्लिश में ही प्रेफर करती हैं पढ़ना? yes, sir. कोई हिंदी या किसी और जबान में नॉवल आपने पढ़ा? Sir, I've read a Hindi version of Robin Sharma's book, The Monk Who Sold His Ferrari, but I mostly read English novels. That's fair enough. That's just a choice of language. No problem in that. Just one thing, because this is an interesting part for me as well into the reading. So, how you see the difference between the communist writers, precisely from the Soviet era, and the Western European writers? दोनों में क्या डिफरेंस आपको देखने को मिलता है अगर आपका एक्सपोजर सोवियत राइटिंग्स के बारे में है? Sir, I've read the Western European writers, but I have no experience with the Soviet writers. सोवियत era से नहीं। ओके ओके, फेयर इनफ सर, प्लीज। हाँ जी। Okay, Jaya, I've seen your form. It's very impressive. So you have your optional also as mathematics, and you have done your graduation as well as post-graduation in mathematics, right? Yes. So recently the Nobel Prizes have been awarded in the last Yes. week. So can you tell me who has got the Nobel Prize in mathematics? Sir, there is no Nobel Prize in mathematics. Okay. So why not? Sir, there are 6 categories of Nobel Prizes, but we have an equivalent to Nobel Prize called Fields Medals in Mathematics, which is given by the International Mathematics Union. So that is considered as an equivalent to Nobel Prize. So what do you think would be the reason that the Nobel Committee has never considered to start a separate prize for mathematics? Don't you think the field does not deserve to have a Nobel? Sir, I do not think at all that the field does not deserve to have a Nobel Prize. But I presently cannot think of any reason why the committee must not have given Nobel Prize. So, in your opinion, what should be the case? Like, should there be a Nobel Prize separately, despite having a Fields Medal, or like it's not required at all? Sir, I believe that what is more important is the recognition and like motivating other mathematicians to come up at the international field. So for that, Fields Medal is like doing excellent work right now. So as such, there is no need for Nobel Prize to be done. But Okay. if it's good, if it is done. Right. Can you name any 2 Indian mathematicians other than Ramanujan? Sir, Mrs. Shakuntala Devi, women mathematician, and sir, from ancient India, we have a lot of mathematicians like Aryabhatta, Bhaskaracharya, Varaha Mihir, and And who is known as the father of mathematics? Sir Aryabhatta is known as the father of mathematics. The world over or only in India? Sir, I'm not sure of the word, but in India, he is known as. In India, Aryabhatta is considered, but like, do you think that the Western countries would consider Aryabhatta to be the father of mathematics? Sir, I'm not aware if he is already considered or not, but definitely his contribution to mathematics from the like in the before Christ era, at that time itself, it has been huge. For example, he calculated the value of pi up to 4 decimal places. He calculated the circumference of Earth to the accuracy of 99%. So such he has basically heralded the era of mathematics
for the entire world. So I Okay. think his contribution definitely deserves international recognition, Right. which Right. is recognized as well. But the designation, I'm not sure of. All right. Speaking of pi, there is a day, a specific day of the year when the Pi Day is commemorated. Can you tell me when is Pi Day commemorated? So I'm not aware of Pi Day. If you were to guess which date it would be, the answer is in the question itself. The 31st April. No, 31st April doesn't exist. You're going in the right direction though. 30th April then. Why 30th April? So because value of pi is 3.14. So So what are I the thought maybe what are the 31st April. permutations and combinations you can make from that figure? Sir, one is like 3/14, but we have only 12 months. Second is like 31st and 4, as I said, but 31st April doesn't exist. Okay. And don't you think And 14th of March could be the Pi Day? yes, sir. Yeah, that's another permutation, isn't it? Yes, All right. definitely. All right. Very well. So you have studied from IIT Delhi, right? Yes. So are you aware of how many IITs are there in India? Sir, there are 20 plus IITs in India as far. Can you tell me the exact number? I'm not able to recall the exact number. And which was the first IIT? Sir, IIT Kharagpur. Right. Are you sure? Yes. Okay. I have seen this building of IIT Delhi, this very impressive facade of IIT Delhi. So there is a specific quote in the logo of IIT Delhi. Can you tell me what that logo, what that quote is? Like every institution has one. Yes, sir. So what is that of IIT Delhi? Sir, sir, I'm not able to recall it completely. Can I, Right. if you allow, can I take a guess? Of course. Sir, as far as I can remember, I think it's Vidya Jyoti Jeevan Jyoti, All right. but I'm not sure of. All right. Not a problem. Not a problem. Okay. My last question to you, Jaya. Uh, what is the meaning of your name? Sir, my name is derived from an Hindi word Jai, which means to win. So, my Sanskrit teacher once told me that Jaya means one who has won everything. So have you? That, but I think that everything is not a binary thing, or like it cannot be. No one can win everything, I think. So, Right. And why do you want to become an HCS officer? Sir, so through the end of my college, by involving in various activities and evolving as a person, I found out that there exist two kinds of goals. One is prosperous, wealthy, and aspiring for even higher goals, while on the other hand, the other world is suffering from even basic amenities of life. So I believe that much more needs to be done in that sector, and I find myself having a strong drive and and a motive to work in that direction. And civil services provides an excellent platform for that. So I want to join. Right. All right, Jaya. Sir. Jaya, you're from Hisar, Yes. Yes. Hisar city. Hisar Yes. is a historical So it is a city. historical. Yeah. Yes. तो वहाँ की क्या हिस्टोरिकल क्या कौन सी चीज which is famous? सर तो हिसार सिटी को फिरोज शाह तुगलक ने 13 फिरोज शाह तुगलक Yeah. हाँ. उसने बनाया था। तो एक तो फिरोज शाह कॉम्प्लेक्स है हिसार में, वो जो उसी समय का बचे हुए कुछ शेष हैं उसके। एक गुजरी महल है, फिर हिस्टोरिकली 4 गेट्स हैं हिसार में, जैसे नागौरी गेट, मोरी गेट,
कालिका गेट और दिल्ली गेट। तो Okay. सर ये हिस्टोरिकल अच्छा। पर्सपेक्टिव। आपने अपने प्रोफाइल में इसमें लिखा हुआ है कि रिसर्च एनालिस्ट एट निम्बल विजन वाटर कंजर्वेशन सेटअप। तो हरियाणा में वाटर कंजर्वेशन का कितना वो है, क्या गवर्नमेंट क्या कर रही है उसके बारे में, और कितनी ग्राउंड वाटर का क्या आपको कुछ है मालूम? सर मेरी रीसेंट जानकारी के अकॉर्डिंग जो हरियाणा में वाटर ग्राउंड वाटर लेवल टेबल है वो 1700 फीट के नीचे जा चुका है, तो जिसे हम वाटर स्ट्रेस की क्राइटेरिया में मानते हैं। तो डेफिनेटली हरियाणा एक वाटर स्ट्रेस स्टेट में आ जाता है। और सरकार सर जैसे कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स हैं, माइक्रो इरिगेशन स्कीम है, फिर एक इसरो का भुवन ऐप है, उसके अकॉर्डिंग ग्राउंड वाटर की मॉनिटरिंग की जाती है, तो वो किया जा रहा है। फिर एक नीति आयोग का ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स होता है, उसमें हरियाणा स्टेट पार्टिसिपेट कर रही है, तो बाकी स्टेट से कंपटीशन, एक कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म वाली चीज आती है। तो नहीं, ये सब ग्राउंड वाटर लेवल जो डाउन जा रहा है उसका रीज़न क्या एग्रीकल्चर है या कोई? सर तो जैसे ग्राउंड वाटर लेवल जो इस्तेमाल होता है, जैसा कि मैंने काफी रिपोर्ट्स में पढ़ा है कि उसका 90% हिस्सा सिर्फ एग्रीकल्चर के लिए यूज होता है। तो मेजर तो एग्रीकल्चर सोर्स है ग्राउंड वाटर नीचे जाने का, बट बाकी और जैसे इंडस्ट्रीज हैं वो भी ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर रही हैं। फिर जो घर हैं और बाकी जो बिल्डिंग्स होती हैं उसमें भी वाटर का एफिशिएंटली यूज नहीं हो रहा है, जिससे वाटर वेस्टेज बढ़ रही है। तो वो भी कारण है ग्राउंड वाटर टेबल नीचे जाने का। ड्रिंकिंग वाटर का भी बहुत क्राइसिस आ रहा है, सर आ रहा है। तो उसके लिए गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट की स्कीम्स है उसका इम्प्लीमेंट हो रहा प्रॉपर, या व्हाट डू यू थिंक? सर तो इसके लिए जो सबसे मेजर स्कीम अभी मुझे ध्यान में आ रही है वो है जल शक्ति अभियान के बाद जो हर घर नल से जल, वो स्कीम शुरू हुई थी। तो उसके हिसाब से अराउंड 60% विलेजेस में मतलब जो टैप वाटर पहुंचाने का काम था वो पूरा हो चुका है। बाकी सर अभी काम चल रहा है, मेरी जानकारी में मुझे इतना पता है। तो पंजाब हरियाणा का भी कुछ पानी का चल रहा, वो क्या है? सर वो सतलुज सतलुज और की जो ट्रिब्यूटरीज हैं रवि और ब्यास, उसका पानी हरियाणा और पंजाब को शेयर करना है। मतलब जो 19 आई थिंक 87 में के कुछ राइपेरियन प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग, बट पंजाब का मानना है कि रवि और ब्यास का पानी ऑलरेडी कम हो रहा है, तो हरियाणा को वो उतना शेयर नहीं दे सकते हैं। तो अभी एक इंडिपेंडेंट ट्राइब्यूनल बनाने की मांग चल रही है, तो ये विवाद है। ओके। Okay. Just last question, Jaya. You have mentioned that drug menace is a increasing challenge before the Haryana. Suppose, and inshallah जरूर, आप SDM हैं. As a SDM, आप क्या स्टेप्स लेंगे जिससे अपनी सब डिवीजन में आप ड्रग मेनास को काबू कर सकें? सर सबसे पहले जो एक मेजर इशू मुझे समझ में आ रहा है वो ये है कि जो ड्रग रिहैबिलिटेशन में और ड्रग पनिशमेंट गिवन में एक जो ब्लर लाइन है उसको एक आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। जैसा कि जो इलीगली काम कर रहे हैं ड्रग का, तो पहला स्टेप होना चाहिए कि अपना जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उनके रैकेट को स्ट्रॉन्ग करो ताकि उनको पकड़ा जा सके और ड्यू पनिशमेंट दी जा सके नेशनल ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट के अंदर। और दूसरा है कि जो युवा ऑलरेडी इस मुश्किल से जूझ रहे हैं उनके रिहैबिलिटेशन के लिए काम किया जाना चाहिए, जिसके लिए फ्री मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट करना, ड्रग फ्री कैंप लगाना, या फिर वर्कशॉप्स कंडक्ट करना, स्कूल एजुकेशन करिकुलम में एक वर्कशॉप्स कंडक्ट कराना या बच्चों को अवेयर करना। आपको लगता है एज अ एसडीएम ये जो आप रेमेडीज बता रहे हैं, एज अ एसडीएम आप ये कर पाएंगे? सर स्कूल करिकुलम आपके हाथ में होगा? सर नॉट स्कूल
curriculum, but in schools, conducting workshops and scheme about awareness for the drugs. Okay, continue if I interrupt you. Sir, then free medicines and this drug-free camps, etc. needs to be set up. तो मेरे ध्यान में सर अभी यही आ रहा है. Okay, I change your role. Now you are DSP. Okay. Now how will you control the drug menace? Sir, for that I'll ensure I may consider setting up a special task force for this drug menace control, and I can also consider launching an app in my district for like people to inform the police or the administration about whenever they notice such kind of drug abuse. The similar app can be launched for the psychological consultation for already the victims of drug abuse, so that they can get proper rehabilitation. ठीक है. That will be also anything? Nice, I think that's it. Okay, Jaya, that is it. As the question part is there, we will take a few minutes to discuss the feedback, and 5 to 8 minutes afterwards, we will provide you the feedback. Hello, Jaya. Am I audible? Okay. Now the interview part is over, so we can relax and we can talk. Okay. So Jaya, first of all, you tell us how your interview go, और कैसा लगा आपको, आपकी सेल्फ असेसमेंट क्या है आपके इंटरव्यू के बारे में? सर मुझे एक चीज लगी that actually I'm not very comfortable with हिंदी, तो मुझे लगा मेरे जो हिंदी के आंसर्स थे वो उतना अच्छे से मैं कन्वे नहीं कर पाई, तो मैं इंग्लिश में ज्यादा कंफर्टेबल रहती थी, उसमें मुझे थोड़ी सी दिक्कत लगी थी, बट अदरवाइज सर मुझे ठीक लगा, ऐसा बहुत प्रॉब्लम तो नहीं. कोई चीजें आपको लगती हैं कि और बेहतर की जा सकती थी? सर यही एक तो हिंदी वाले आंसर्स थोड़ा स्ट्रेच भी हो गए थे, मुझे लगा कि ओके, ठीक थोड़ा है, और प्रिसाइज हो सकता था आंसर. ठीक है. Okay, Jaya, first of all I tell you कि we judge you on 6 parameters basically, जो prime pillars होते हैं हमारे. That first is behavior and body language, which is non-verbal communication. Then there is personal profile, academic knowledge, then verbal communication, intellectual and moral integrity, and the critical assimilation that is based on balance of your judgment. With in the questions where dilemma creeps in. So how you balance the things, okay? So first thing कि सभी पैरामीटर्स पे कहीं पर भी आपका कोई ऐसा नहीं कि जिसको हम मिस्टेक भी कहें. All things are fine. हाँ, बाकी ऑनरेबल मेंबर्स जरूर आपको कुछ चीजें बताएंगे जिनका आपको सिर्फ ध्यान रखना है, एहतियात, मतलब ओवरऑल आपको कोई ओवरऑलिंग की जरूरत नहीं है ना. सो फर्स्ट जैसे मुझे लगा कि एक तो ये आपका अगर हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की बात करें, जैसे अच्छा आपका इंटरव्यू कब है मेन? सर 10th afternoon slot. 10th on 10th day after tomorrow in afternoon slot. I have to report at 12. ओके. सो अभी जैसे आज इंटरव्यू था तो आप जैसे ड्रेसअप होके क्यों नहीं आए, कोई खास वजह? Actually, I wear a sari and that is in my hometown and I am presently in Delhi. So. ओके, आप कहाँ पे हैं इस वक्त? Sir, I am in IIT Delhi. ओके, यू आर फ्रॉम, ओके. तो घर कब जा रहे हैं आप? Sir, tomorrow early morning at 6. टाइम से पहुंचिए, जरूरी है. Sure. ओके. सो आई बिलीव वो ड्रेसिंग और वो सब सेट है आपका, मतलब आप डिसाइड कर चुके हैं कि आपने पहनना है? वो रेडी भी है. ठीक है. Yeah, it's your first interview with the civil service? Yes. Okay, first chance is always the best chance, okay? And beginner's luck will be with you all, है ना? So the thing is this कि एक चीज आप ये करें, जब मैं बात कर रहा हूँ वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की, हो सकता है वो ऑनलाइन फॉर्मेट की वजह से भी हो कि आपकी हेड की मूवमेंट काफी ज्यादा लगी, मतलब काफी ज्यादा इन द सेंस कि नॉर्मल से थोड़ी सी ज्यादा. थोड़ी ज्यादा सर, ये मुझे भी लगता है कि हाँ थोड़ी ज्यादा है. हाँ, देखिए क्या है कि ऐसा नहीं कि आपको वहाँ स्टैटिक होके बैठना है, आप अपनी नेचुरल मूवमेंट रखें. ठीक है.
मतलब एनिमेटेड रहे वहां पे, आपको फ्रोजन नहीं होना है वहां पे। तो आप जो भी आपका पोर्शन, आई बिलीव यू नो दैट हैंड्स शुड बी प्लेस्ड नियर योर शी नियर योर नीज, ओके, वो चीजें आपको क्लियर है? हाँ वो सर क्लियर है ओके। सर, बट एक मुझे बैलेंस नहीं आ पा रहा है, मतलब जैसे मैं आई थिंक ये मेरी नेचुरल पर्सनालिटी है कि कोई भी मुझसे बात करता है तो आई एम वेरी मच इन्वॉल्वड इन द कन्वर्सेशन, दैट्स व्हाई आई नॉड। तो अब मतलब सर मैं इसे कैसे किस लेवल पे लेकर आऊँ, मतलब अभी मैं बहुत ज्यादा कर रही हूँ, मुझे पता है। ओके सी, पहली बात, ये इतना ज्यादा बड़ा फैक्टर नहीं है कि आपको 100% ठीक करना पड़े। पॉइंट वन, ठीक है इट्स नॉट दैट मच ऑब्नॉक्शियस कि ये तो बिल्कुल ही ठीक करना पड़ेगा। अगर आप इसके साथ भी जाएंगे तो कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा। सेकंड थिंग, अगर फिर भी कि यार मैं एक चीज को थोड़ा डिग्री अगर ठीक कर लूं तो मेरे फेवर में आएगा, हम उस पॉइंट पे हैं। हाँ अगर ये इतना बड़ा आपके खिलाफ फैक्टर होता तो मैं कहता भाई इसको तो हम काबू करते हैं, हम तरकीबें निकालते हैं इसकी। तो पहली बात, इतना बड़ा फैक्टर नहीं है ये, है ना। बॉडी लैंग्वेज सभी की होती है, तो थोड़ा सा ये होता है कि और ऐसा नहीं है कि मैं जैसे अभी कह रहा था कि आपको वहां पे फ्रोजन नहीं होना, एनिमेटेड रहना है। तो गर्दन की मूवमेंट हो सकती है ना, वो कर सकते हैं आप, या हेड की मूवमेंट हो सकती है, लेकिन थोड़ा सा कुछ ज्यादा था चीजों को लेके, वो थोड़ा अजीब लगता है बोर्ड को, है ना। मतलब हो सकता है कोई मेंबर उसको नोट करे, नोट ऐसा भी नहीं है सब मेंबर नोट करेंगे, ठीक है। दूसरी चीज, अब आप कह रहे हैं कि आपका नेचुरल वे है, तो या तो आप उसको साथ रखें या फिर दिमाग में एक कॉन्शियसनेस हो सकती है, थोड़ा प्रैक्टिस भी कर लें, एक दो और मॉक से किसी के साथ प्रैक्टिस कर लें, खुद का वीडियो प्रैक्टिस कर लें कि अल्टीमेटली आपको सारी लाइफ के लिए ठीक नहीं करना है ना। ये फैक्ट है। एक बार आप एसडीएम बनिए जया जी, उसके बाद गर्दनें आपके इशारे पे घूमेंगी, इफ आई मे से सो। And this is the reality of the civil services. Nobody is going to ask you. So this is not to change a habit for lifelong purpose. It is just a management of 15 to 20 minutes. And I'm 100% sure that your academic and your profile, आपकी ट्रेनिंग इस तरह की है कि 15-20 मिनट आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। 15-20 मिनट हम थोड़े कॉशियस इन चीज़ों के बारे में हो सकते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि गर्दन आपको बिल्कुल नहीं हिलानी है, थोड़ा हिल रहा है तो चलेगा, थोड़ा अलर्ट रहे माइंड में कि बहुत ज्यादा मूवमेंट ना हो, बहुत ज्यादा ठीक है। और अगर हो भी जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं, कोई इतना बड़ा फैक्टर नहीं है, इट्स जस्ट एन इंच ऑफ इम्प्रूवमेंट, नहीं। ओके। देयर इट इज देन इट कम्स टू, ठीक है, ये बाकी तो सारी चीजें आपका, जहां तक हम बात कर रहे हैं, पर्सनल प्रोफाइल तो बहुत अच्छा है आपका, है ना। तो जो जहाँ से आपने एजुकेशन ली है, चाहे इंद्रप्रस्थ कॉलेज हो या फिर आईआईटी दिल्ली, है ना, तो इट ऑल गोज इनटू योर सपोर्ट, और आप उसको कैरी भी कर रहे हैं अपनी पर्सनालिटी के साथ, तो इट इज जस्टिफाइड एज वेल, जो भी आपका एकेडमिक बैकग्राउंड है। और आपके प्राइजेस बहुत अच्छे हैं, तो वो आपके हक में जाएगा। एकेडमिक नॉलेज एज फार एज गुड, उस पर हालांकि एक दो पॉइंट्स सर आपको बताएंगे। एंड intellectual moral integrity, that is all fine, like on drug menace, like the issues and challenges, so जी that is also balanced. So as far as things are, that is promising, all promising. I'm just looking कि कहाँ पे कोई मैं और कि ये इम्प्रूवमेंट की बात करूं, तो ऐसा सच बड़ा मुझे नजर नहीं आ रहा है। बाकी सर आपको गाइड करेंगे फिर। सर एक चीज मैं पूछ सकती हूँ कि जैसे आपने बोला कि जो प्राइजेस और स्कॉलरशिप के इम्प्रेसिव है, तो सर ये बोर्ड मेंबर्स को कैसे पता चलेगा, मतलब उनको तो ये कुछ डाक तो आया नहीं है इनका। हाँ जी, डैफ नहीं आया। देखिए, अब पिछली बार की तरह भी हो सकता है कि मौके पे आपसे कुछ भरवा लें। अच्छा पिछली बार भरवाया पिछली बार का आई एम नॉट श्योर कि मल्टीपल आर देयर, पिछली बार नहीं भरवाया था, बट ये कई बार ट्रेंड चलता है, पीसीएस लेवल के एग्जाम में भरवा लेते हैं, ठीक है। और अगर नहीं भरवाते हैं तो ठीक है, मतलब वो नहीं होगा, या आपको इंट्रोड्यूस करने के लिए बोलेंगे वो, वैसे आपका है ना इंट्रोडक्शन, वो हो सकता है लें। सर तो फिर इंट्रोडक्शन में मुझे मतलब कि मेरी अचीवमेंट के बारे में कुछ इंक्लूड करना चाहिए। नहीं नहीं, इतना नहीं, वो बहुत ज्यादा वर्बोस हो जाएगा। हाँ, जैसे आपने कहा था कि कॉलेज के दौरान आप कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया आपने, है ना। सर एक्चुअली वही मैं, मतलब जैसे उनकी लीडरशिप पोजीशंस पे थी, तो
वो आई थिंक सर इंट्रोडक्शन में बोलने में अच्छा नहीं लगता है हाँ, नहीं वो वर्बॉस हो जाएगा, वर्बॉस हो जाएगा वहां पे नहीं। बट जब आप ये बता रहे थे कि मैंने कॉलेज में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया, वहां तक ठीक है, मे बी समबडी विल आस्क कि क्या एक्स्ट्रा करिकुलर, देन देयर विल हैविंग स्कोप, है ना। तो अगर स्कोप मिलेगा तब, अदरवाइज आप इसको ओवर्ट जाके ना प्रेजेंट करें चीजों को। So ठीक। my introduction seems fine. हाँ, इंट्रोडक्शन वेल क्रिस्प एंड फाइन इंट्रोडक्शन, हाँ, introduction अच्छी थी। इट इज वेल डिसेंट, यस। ओके। Sir, one thing is that there they say that age name and district has not to be disclosed. So I've read in certain transcripts. ये पिछली, हाँ जी, हाँ जी, कंप्लीट करें। तो सर उसमें जैसे मैंने जो इंट्रोडक्शन मैं स्टार्ट करती हूँ, फिर नेम प्लेस के बाद मैं सिर्फ एज बोलती हूँ, तो एज से डायरेक्ट स्टार्ट करना फिर सही रहेगा? Like I'm 26. Suppose I just have to start from scratch. So now I say, "Good afternoon, sir. I'm 26 years old and I have an educational background in management." So does that work? नो, देखिए पिछली बार से इन्होंने शुरू किया है सर, हाँ। प्लीज। हाँ, तो आप जी, कंप्लीट ये पिछली बार शुरू किया कि नाम और एज वगैरह ड्रॉप करा दिया था, तो सूटेबल फिर ये है कि आप एजुकेशन से शुरू करें। आपका इंट्रोडक्शन, आपसे कोई अगर आपको इंट्रोड्यूस करें, तो मेरे आपको नहीं लगता कि आपका पहला पॉइंट आपकी अचीवमेंट होना चाहिए, और एज इज नॉट एन अचीवमेंट इन योर हैंड्स। सो एजुकेशन, और वो आपकी माशाल्लाह बहुत अच्छी है, तो आप एजुकेशन बताएं। हाँ, बाद में आपको थोड़ा लेना होना कि मुझे यंग एज भी बतानी है, बाद में बताते हैं अपनी, ठीक है। है ना, इन बिटवीन कहीं पे कि आई एम दिस मच एज, तब ठीक रहेगा। ओपनिंग लाइन नहीं होनी चाहिए, Okay. क्या? ओके, कोई नहीं, आपको टाइम देंगे, आपने जो भी सवाल पूछने हैं वो भी देंगे। एक बार अपनी तरफ से हम कंप्लीट कर देते हैं। हाँ नहीं, इट्स परफेक्टली फाइन, फीडबैक जो हमारे है ना। हाँ जी सर। जय, आपका बहुत अच्छा है, प्रोफाइल बड़ा अच्छा है, इंटरव्यू बड़ा अच्छा। आप स्टार्टिंग में हमारे को ऐसे लगा, प्रेजेंटेशन आपकी ऐसी थी कि आप घबराए हुए हो, ऐसे नहीं होना चाहिए। Okay. फेस बिल्कुल ऐसे रखना जैसे आप बाद में अब बात कर रहे हो, ठीक है। ठीक है। मेरा सजेशन दूसरा ये है कि वाटर कंजर्वेशन पे आपने जो वो किया है, आंसर दिए हैं, उसका एक तो फिगर का थोड़ा ध्यान रखो, तो और जो SYL का है उसका थोड़ा बैकग्राउंड थोड़ी सी होनी चाहिए, उसकी एग्जैक्ट होनी चाहिए। तो ऐसे तुक्के मारना ना समझे कि कैसे। तो बाकी आपका ऑल द बेस्ट, अच्छा है। हाँ, थोड़ा प्रेजेंटेशन जो है स्टार्टिंग का वो ठीक। थैंक यू। जी। मैं भी जया, बस आपको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। मैं भी आपको ये कहने लगा था कि यू कम अक्रॉस एज अ वेरी जेन्युइन कैंडिडेट, तो आपको कोई ज़्यादा इशू नहीं आएगा। एक चीज़ जो मैंने नोटिस की, शुरू में जैसे सर ने आपको पूछा कि आप हिसार सिटी से हैं, तो आपने बोला कि हिसार एक डिवीज़न भी है, और हाँ मैं हिसार सिटी से हूँ। तो आपको पूछा नहीं गया था कि आप हिसार डिवीज़न से हैं, राइट? तो जितना आपको पूछा जा रहा है, अगर आप प्रिसाइज रहेंगे तो अच्छा रहेगा। अदरवाइज वो आंसर में से क्वेश्चन निकाला ना फिर सर ने कि फिर बताओ कितने डिविजन्स हैं, सो यू डोंट गिव आउट दैट, है ना। जस्ट टू एड ऑन सर, एंड जी। सर हैज राइटली ऑब्जर्व, वो डिवीजन वाला और वो इतना स्टैटिक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछने नहीं थे। वो जस्ट है ना, थ्रोइंग द फिगर्स, वो उसी से निकल के चलिए चलते हैं। तो जैसा सर कह रहे हैं, प्लीज करिए। बिल्कुल बिल्कुल। और एक वही जो सर ने बोला कि ग्राउंड वाटर लेवल, जैसे आपने मेंशन किया ना, आपने बोला 1700 फीट पे है, तो 1700 फीट पे नहीं है, मतलब इट्स 170 फीट एक्चुअली। तो हो सकता है आपसे गलती से निकल गया हो या कुछ भी, बट अगर सामने वाला उसको पकड़ ले कि आप श्योर हैं कि 1700 फीट, 1700 फीट इज़ टू मच। जैसे हमारे घरों में भी अगर कभी सबमर्सिबल पंप लगता है तो वो 200 300 मैक्स 400 फीट पे लग जाता है। तो अगर आप कह रहे हैं कि 1700 फीट ग्राउंड वाटर लेवल है, तो वो आपने अब एक फिगर मेंशन कर दी है। इट्स नॉट सब्जेक्टिव, इट्स एन ऑब्जेक्टिव फिगर। तो अगर सामने वाला उसको ऐसे परसीव करेगा कि यार ये रियलिटी से कितनी दूर है, कि लेट से रियलिटी 170, इसको 1700 पता है ना, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि ग्राउंड वाटर लेवल बहुत नीचे चला गया है, रादर देन सेइंग कि ग्राउंड वाटर लेवल इतने 100 फीट पे चला गया है ना। तो फैक्चुअल एरर आप थोड़ा सा अवॉइड करेंगे। बाकी सब मुझे ठीक लगा, बाकी आई डोंट थिंक कि कोई इशू था। कहीं कहीं पे जैसे हिंदी में क्वेश्चन पूछा तो आप इंग्लिश में ही आंसर कर रहे थे, वो आप थोड़ा सा, है ना, तो वो अगेन आपने बता दिया कि आप इंग्लिश में थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। बड़ा फैक्टर होगा भी नहीं वो, बट थोड़ा सा
अगर जैसे वैसे प्रेफरेबली तो हिंदी में ही करना चाहिए ना, अगर कोई हिंदी में क्वेश्चन पूछे हाँ, तो। बिकॉज एक्चुअली दे आर चेकिंग कि क्योंकि आपको स्टेट में काम करना है, तो काफ़ी हद तक ये कई बार डेलिबरेटली पूछा जाता है कि देखिए इन स्टेट लैंग्वेज में कितना आपका होल्ड है, जो कि आपका होना चाहिए बिकॉज आप लोकल हैं। तो हिंदी कोई आपसे वो ऐसी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि आप बहुत ही मृदुभाषी हो टाइप, तो आपसे बिल्कुल उत्कृष्ट हिंदी की हाँ, जरूरत नहीं है। उत्कृष्ट हिंदी नहीं मांग रहे वो, तो बस मेरा आप मतलब सही लगा आपको हिंदी में, तो हाँ हाँ मैं बिल्कुल कोई इशू नहीं है, वर्ड आ सकते हैं ना ये तो। बिल्कुल आ सकते हैं। आप जो टेक्निकल वोकेबुलरी है वो इंग्लिश की यूज कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेंटेंस स्ट्रक्चर आपका हिंदी का होना चाहिए, जो आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हमें आपने अपनी प्रॉब्लम पॉइंट आउट की है हिंदी की, हम में से किसी को नहीं लगा कि हिंदी आपकी प्रॉब्लम है, वो आपको लग रही है एग्जैक्टली ना? बिल्कुल आई थिंक सच मुझे नहीं। हाँ, तो आप ये कॉन्शियस होके मत जाना इंटरव्यू में कि मेरी तो हिंदी अच्छी नहीं है, उनको नहीं पता चलेगा। सर मुझे हाँ, मतलब तो थोड़ा हो गया है। और सर वैसे कितने % चांसेस है, लाइक मतलब बहुत ज्यादा क्वेश्चंस तो हिंदी में, मोस्टली तो इंग्लिश में ही होता होगा अगर वो इंटरव्यू। आपकी पूरी इंटरव्यू भी हिंदी में ले लेंगे ना, तो भी आप कंफर्टेबल रहें, कोई इशू नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 100% हिंदी बोल के आनी है। आप बीच बीच में इंग्लिश के वर्ड यूज करते रहे, इंग्लिश यूज करो, आप कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर ऐसा हो सकता है पूरा इंटरव्यू भी हिंदी में होता हाँ, है? हो सकता है, बट डोंट गेट डिस्टर्ब बाय इट। आप ऐसा सोचो ना कि मुझे बस हिंदी का, लेट अस से, क्या बोलते हैं उसको, कि हिंदी के एडजेक्टिव्स यूज करने हैं, बीच में जो वर्ड्स हैं इंग्लिश के वो सारे मैं यूज कर सकती हूँ। जैसे आप ऐसे बोल सकते हो कि मैंने वाटर कंजर्वेशन में काम किया है। आपको ये बोलने की जरूरत नहीं कि मैंने जल संरक्षण में काम किया है। आप बोल सकते हो कि मैंने वाटर कंजर्वेशन में काम किया, इट्स टोटली फाइन। बट आप ठीक है। सेंटेंस तो हिंदी में बोल रहे हैं ना, तो वो टोटली एक्सेप्टेबल होता है। आप बिल्कुल घबराना मत अगर आपकी पूरी इंटरव्यू भी हिंदी में जाए। इंग्लिश में गई तो इट्स डेफिनेटली इन योर फेवर 100%, फिर तो आप, बट आप कॉन्शियस मत होना कि मुझे हिंदी नहीं आती, क्योंकि कोई ऑब्जर्व नहीं कर रहा है या आप ही कर रहे हो। बाकी आई थिंक एवरीथिंग इज टोटली फाइन। बस ये आंसर जितना आपको पूछा जाए उतना देना आप। बाकी योर प्रोफाइल इज रियली गुड, कोई भी आपकी प्रोफाइल देखेगा तो दे आर गोइंग टू आस्क यू सम क्वेश्चंस ऑन मैथ्स डेफिनेटली, जैसे मैंने पूछे थे आपको। Yes, sir. That was really a good question, sir. I should have known. I should हाँ, have known. नहीं आपको आते भी थे 80-90% क्वेश्चन। जैसे फादर ऑफ मैथ्स आई थिंक आपको आना चाहिए था ना, आर्किमिडीज इज द फादर ऑफ मैथ्स। Okay. हाँ ना, कितना इजी। तो आर्यभट्ट इज फादर ऑफ मैथ्स कंसिडर्ड बाय इंडियन स्टैंडर्ड्स, और फादर ऑफ मैथ्स ओवरऑल अंग्रेज थोड़ी मानेंगे आर्यभट्ट को, वो कहते हैं जी आर्किमिडीज। वो चाणक्य को नहीं मानते हैं। वो कहते हैं सीरियसली, है ना? तो बस कुछ भी नहीं, बड़ा सिंपल सा था ये। बाकी आई थिंक इट्स टोटली फाइन, यू आर गोइंग टू स्कोर रियली वेल, यू आर गोइंग टू कम आउट विद फ्लाइंग कलर्स, totally fine, so there is no problem with that. All the best. Sir, how do you like rate my performance as at par with other candidates? ऐसा कुछ है नहीं, रेटिंग वगैरह जैसी कोई बात नहीं है। इंटरव्यू में सब्जेक्टिविटी का बहुत बड़ा रोल होता है। अभी मैं अगर आपको बोल दूं कि आपकी इंटरव्यू 10/10 थी, हो सकता है एक्चुअल इंटरव्यू आपकी 9/10 हो या 8/10 हो, एंड वाइस वर्सा ऑल्सो इज ट्रू। वट नीड्स टू बी कॉन्स्टेंट इज यू। आप अगर कांस्टेंट रहेंगे अपने माइंडसेट में तो हर इंटरव्यू आपकी अच्छी जाएगी। ऐसा कोई रेटिंग वाला सिस्टम नहीं है। वो आपको जो 2-3 पॉइंट्स बोले हैं आप उन पे वर्क करेंगे, यू आर गोइंग टू डू रियली वेल। राइट। एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क? No, sir. I think I've asked. ओके, जस्ट टू एड ऑन रादर टू कंक्लूड, सर ने सभी ने अच्छे समराइज कर दिया चीज़ों को। एक प्लीज जस्ट टू रीआइट्रेट द पॉइंट्स। एक, क्योंकि आपने मेंशन किया हुआ है वाटर कंजर्वेशन स्टार्टअप्स का, तो थोड़ा वाटर कंजर्वेशन के बारे में आप प्रिपेयर कर लें अपने आप को। और दूसरा SYL इशू प्रिपेयर कर लें। हाँ, बनने की शो आजकल SYL इशू, लाइक जस्ट टू आस्क यू, SYL में जो नहर में पानी आना है ये कौन कौन से रिवर से आएगा? सर रवि और ब्यास। SYL का पानी सतलुज इट इज सतलुज यमुना कला लिंक कनाल। सर वो तो कैनाल लिंक हो रही है ना, बट पानी का जो डिस्प्यूट है वो तो रवि और ब्यास उसका नहीं है नदी का, और वो सतलुज की ट्रिब्यूटरीज है। आप दो चीजों, क्या आप इंडस वाटर ट्रीटी की बात कर रहे हो 1960? नहीं नहीं सर। नहीं, आपने कहाँ से पढ़ा है टॉपिक? सर ये अभी मतलब मेरे को ऑनेस्टली बिकॉज आई वाज नॉट अवेयर ऑफ दिस बिकॉज सर लास्ट मंथ आई हैवंट कवर्ड करंट अफेयर्स, आई वाज राइटिंग UPSC मेंस एज वेल, so I recently read it like
in some random coaching institute. I don't remember the name, sir. प्लीज इसको दो चीजों का फर्क करें हम आप इस पे सिर्फ 20 मिनट इन्वेस्ट करें अपने Okay, okay, sir. I'll surely do that. और अब मैं आपको बता देता हूँ आप जरूर SYL इशू पढ़ें और इसी में इंडस वाटर ट्रीटी जो हमने पाकिस्तान से साइन की थी उसको अभी थोड़ा सा ब्रीफ देख लें ठीक है। और इस पे 20 मिनट लगाएं बस आपको बहुत ज्यादा टेक्निकल इतना मत कि कितने है ना कि मिलियन पानी का हेक्टेयर लगता है, एकड़ उसमें- पानी पीट किसको हाँ। मिल रहा है इतना ज्यादा नहीं बट आपको ठीक बेसिक नॉलेज का आइडिया होना चाहिए ठीक है, टाइमलाइन का आइडिया होना चाहिए है ना ठीक है, sir. वो आप कर लें इसके बारे में तो SYL 1 थिंग ये प्रिपेयर करें आप ठीक जो है। प्रिपेयर करने वाला पोर्शन है और वाटर कंजर्वेशन वाला थोड़ा कर लें आप और कुछ सर अगर मेजर मैथ्स हो गए नथिंग बाकी आपका एकेडमिक नॉलेज बहुत अच्छा है उसमें कोई डाउट नहीं है ये वो है कि आपसे पूछे जा सकते हैं हाँ और ये वो है अगर पूछ लिया उन्होंने तो वो मिस्टेक बर्दाश्त नहीं करेंगे है ना वो वाली चीज है तो इसलिए इसको प्रिपेयर कर लें और बाकी हिंदी इंग्लिश जस्ट टू रिआइट्रेट देखिए पिछले साल के जो इंटरव्यूज हैं वो सारे ही ज्यादातर बाइलिंगुअल थे बट जस्ट थिंक के खुद बोर्ड में ऐसे लोग हो सकते हैं बैठे हुए जो खुद इंग्लिश से बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है तो हो सकता है हिंदी में और जैसे सर ने कहा कि आप तो इसके लिए प्रिपेयर होके जाएं कि सारा भी हिंदी में हो जाएगा तो भी देख लूंगी इस एटीट्यूड के साथ जाएं और खासकर जैसे हम सभी लोग वैसे लैंग्वेज देखते हैं बट है ना कि दोनों सर ने थोड़ा मेरी ड्यूटी लगाई हुई है कि थोड़ा हिंदी वाला आप चेक कर लिया करें थोड़ा हम भी काम बांट के रखते हैं ना कि अलग अलग टीम वर्क है तो दोनों सर ने मेरा थोड़ा ड्यूटी लगाई है हिंदी के बारे में क्योंकि मेरा थोड़ा हिंदी बैकग्राउंड रहा है बट आई अश्योर यू कि मैंने बिल्कुल नहीं नोट किया इस चीज को या आपने बिल्कुल नहीं अंदाजा होने दिया कि आपकी हिंदी साइड कमजोर है ठीक है। हालांकि वो कई बार पकड़ में आ जाती है तो आप बिल्कुल वहां पे ना शो होने दें मतलब इस तरह की कोई भी है ना चीज जैसे आपने यहाँ नहीं शो होने दिया हमें नहीं पता लगा कि आपका हिंदी और जैसे आपने शुरुआत में कहा था कि हिंदी वाले आंसर मैं नहीं कर पाई हूँ हमें ऐसा नहीं लगा है तो मुझे नहीं लगा सर बाकी आप लोग नहीं लगा हमें भी ऐसा नहीं है शो नहीं होने देना आपने हाँ तो बहुत अच्छे से करेंगे और आप एज कंपेयर टू अदर या रेटिंग की फिगर बिल्कुल ना करें अब अगर मैं थोड़ा सा और इनफॉर्मल और थोड़ा फैमिली बेसिस पे कह सकूं इंक्लूडिंग द प्रोफेशनल you are surely going to have what you desire. I'm not talking about the selection, rather the post you are targeting. You will definitely get it. ऑल द बेस्ट सब चीजें आपके हक में फुल कॉन्फिडेंस से जाइए ऑल द वेरी बेस्ट Thank you, sir. Thank you. all the best Thank you.